Hello student. Welcome to our YouTube channel Explore Learning Center. Okay. In the last lecture we have solved some MCQs based on the what Coulomb's law. Okay. In that first MCQ I made a small mistake, so make it correct. Okay. So I will show you that MCQ. So where is that MCQ? Okay. So here is the MCQ. Okay, so this one. Okay, so I told you this is the answer, but actually the fourth one. Okay, so that is the answer. So how it comes actually, if you see this step, okay, so we need what? Q by m. Okay, so Q by m. So here it is g m square. Okay, so this 4 pi epsilon naught will multiply with g and this m square will be down. Okay, so rather than writing here, you have to write it what? 4 pi epsilon naught. Okay, so if you write it down, then the final answer Q by m is equal to what? Under root of 4 pi epsilon naught g. करेक्ट. ओके, सो मेक इट लिटिल बिट करेक्शन. ओके, मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी. अभी हम भी तो इंसान ही है, तो गलतियाँ तो इंसान से होती है. करेक्ट. ओके, सो मेक इट करेक्ट. ओके, सो नाउ टुडे we are going to learn regarding to what? One basic property of the charge, that is nothing but the what? Electric field. Okay, so it is one of the, actually it is inherent property of charge. Inherent property of charge. Inherent property of charge means what? Wherever the charge is present, then of course there must be a electric field. Okay, unlike in the gravitational force, or you can say Newton's law of gravitation. Okay, so Newton's law of gravitation will tell you what? You can say Newton's law of gravitation. Okay, so Newton's law of gravitation is between the what? The two masses. Suppose this is m1 and this is what? m2, and they are separated by a distance of r, then they exert a force. Okay, so F is equal to what? G m1 m2 divided by r square. Okay, now you can see here this mass and this mass. Okay, doesn't matter how much small is the mass or larger is the mass. Suppose I will consider this is earth. Okay, and this is what? A moon. Okay, now earth and the moon, they are binded with what? Which force? A gravitational force. Okay, now you can see here from earth to moon there is nothing, that means totally vacuum is there. Totally a vacuum is there, but still earth apply the force on moon, and similarly moon is also applying the force on earth. Okay, हाँ, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम नहीं है. तो ये अर्थ और मून एक दूसरे के ऊपर फोर्स कैसे लगा रहे हैं? किस चीज़ की वजह से लगा रहे हैं? ओके, और हमें पता है कि अर्थ और मून ये दोनों क्या है? मास है. तो हर एक मास के अराउंड द मास, उनके अराउंड एक इनविजिबल फील्ड होता है. ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक इनविजिबल फील्ड होता है. ओके, इनविजिबल क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता. इनविजिबल फील्ड होता है, उस फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं. व्हाट वी कॉल अ ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, इसका मतलब क्या है? अगर जहाँ मास है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड पक्का होगा. वहाँ पे क्या होगा? हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड पक्का होगा. करेक्ट. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट. ओके, नाउ जैसे अराउंड द मास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे मैग्नेट. क्योंकि अर्थ और मून इनके बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन अर्थ और मून ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ द व्हाट? अ ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि ये भी मास है, इसके अराउंड भी इनविजिबल थिंग होगा, इसके अराउंड भी इनविजिबल थिंग है, तो वो दोनों इंटरेक्ट होने के बाद क्या होता है? वहाँ पे फोर्स लगने शुरू हो जाता है. ठीक है, सो दे विल अट्रैक्ट द फोर्स, अप्लाई द फोर्स ऑन ईच अदर. ओके, सो नेक्स्ट इज यू कैन हैव मैग्नेट. ठीक है, जैसे ये मान लो. ठीक है, आई विल शो यू कैन सी हियर. ओके, सो ये एक मैग्नेट है. ठीक है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार, उसको बस व्हील लगाया हमने. ठीक है, और ये रेड वन है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है. ठीक है, और ये मेरे पास एक दूसरा मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. ठीक है, अब हमें पता है कि नॉर्थ जब नज़दीक आएंगे तब रिपेल होगा, मतलब ये उसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, और नॉर्थ साउथ जब नज़दीक आते हैं तब अट्रैक्शन होता है. ओके, सो नाउ यू कैन सी, आई विल जस्ट ब्रिंग दिस मैग्नेट. ओके, अभी इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है. ठीक है, मतलब ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, बट विदाउट टचिंग. नाउ यू कैन सी
once I bring this closer to this, that magnet will start repelling. You can see here slowly that magnet is repelling. Okay, अब देख सकते हो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, हाँ, लेकिन कांटेक्ट किया क्या मैंने, नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, इसके अराउंड और इसके अराउंड इन दोनों के बीच में कुछ तो है, इन दोनों के बीच में कुछ तो है, और वो जो इनविजिबल थिंग है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका जो इनविजिबल थिंग है इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सिमिलरली और ये मैं लेके आऊँ, अभी ये थोड़ा सा हेवी है तो ये रिपेल नहीं करेगा, ठीक है। ओके, सो यू कैन सी हियर, जैसे जैसे मैं नज़दीक लेके जाऊँ वैसे वैसे वो रिपेल होते ही जा रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कुछ तो है, जैसे इन दोनों के बीच में मास के बीच में कुछ तो था जो एक एक्सर्ट फोर्स लगा रहे थे, उसको हम ग्रेविटेशन फील्ड बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों के बीच में कुछ तो है और उस इनविजिबल थिंग को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, हम उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। सिमिलरली दो चार्ज बॉडी, ठीक है, हमें पता है कि कूलम्स लॉ, पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या लगाती है, फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। हाँ, जैसे मास के अराउंड ग्रेविटेशन फील्ड होता है, मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही चार्ज के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, समझ में आ गया। और इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो मास के अराउंड ग्रेविटेशन फील्ड, मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो अब हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, अराउंड एनी चार्ज्ड बॉडी, around any charged body, okay, there is electric field, there is what, electric field, ठीक है। अराउंड मतलब कैसे, जैसे मान लो ये एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, यू कैन कंसिडर हियर दिस इज व्हाट द चार्ज बॉडी, ठीक है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके अराउंड मतलब सब तरफ, इसके इस तरफ हर जगह इसके मतलब टोटली सिमेट्रिक होता है, स्पेरिकल सिमेट्री, मतलब यहाँ पे भी हर जगह मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हर जगह क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट। ओके, तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है। ओके, हाँ, तो मैं सिंपल वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये डेफिनेशन आपको लिखना नहीं है। So to know exactly the meaning of electric field, okay, so I am writing this definition. So it is an invisible force of lines, okay, it is a invisible force of line, okay, around the charged body, around the charged body, which exerts a force on other charged or uncharged body, करेक्ट, समझ में आ गया, ठीक है। ऐसा क्यों बोला मैंने, जैसे ये मान लो मैग्नेट है और ये मैग्नेट, ठीक है, हाँ, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस आर द व्हाट द फोर्स ऑफ लाइंस, व्हाई फोर्स ऑफ लाइंस, बिकॉज दे आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस बॉडी, ओके। सो दिस आर द व्हाट द फोर्स ऑफ लाइंस, इमेजिनरी फोर्स ऑफ लाइंस, इनविजिबल फोर्स ऑफ लाइंस, which exerts a force on another magnetic material, ठीक है। अब यहाँ पे प्लास्टिक रखने से तो ये रिपेल नहीं होगा, मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए, तो आयरन चाहिए तो दूसरा मैग्नेट चाहिए, ओके। तो ये क्या है, इनविजिबल फोर्स ऑफ लाइंस है जो फोर्स लगाने का काम करती है विदाउट कॉन्टैक्ट। तो सिमिलरली ये अगर दो बॉडीज है, ठीक है, ये अगर दो बॉडीज़ है, ठीक है, ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जैसे ये मैं पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे लेके आऊँगा, ये रिपेल करेगा, करेक्ट। हाँ, अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन स्टिल ये रिपेल करेगा ऐसे, ठीक है। तो क्यों रिपेल किया, क्योंकि इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी, इन दोनों ने इंटरेक्ट किया है, इंटरेक्शन की वजह से इन दोनों में फोर्स लग चुका है, ओके। सो ये इनविजिबल थिंग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनविजिबल थिंग्स, ओके। सो नाउ, ओके, जैसा एग्जांपल मान लो,
इफ़ यू कंसिडर दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज क्यू, ओके, पॉजिटिवली चार्ज, और उसके एक सर्टेन डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, एक पॉइंट है, वहाँ पे आपने एक टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, मतलब जो चार्ज हम लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ओके। और ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, ओके, सॉरी, ओके, सोर्स चार्ज क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ऐसा नहीं कि टेस्ट चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इसके पास भी होता है, लेकिन हमने इसको रेफरेंस पॉइंट पकड़ा है 0, ओके। सो नाउ जैसे मान लो ये चार्ज अगर मैं यहाँ पे लाऊं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। अगर मान लो इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे, ठीक है, ये क्यू नॉट मैंने रखा ही नहीं है, ये क्यू नॉट मैंने रखा ही नहीं है, हाँ, तो ये इस पी पॉइंट पे क्या है, ठीक है, इस पी पॉइंट पे क्या है जो इस क्यू नॉट पे फोर्स लगा रहा है, तो इस पी पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन से, किसका, इस चार्ज का। अच्छा, ये क्यू नॉट चार्ज अगर मैंने यहाँ पर रख दिया तो भी ये फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब इस चार्ज के अराउंड हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, पूरा कवर करेगा एक ग्लोब स्फीयर की तरह, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द you can say electric field, okay, so exactly definition of electric field, okay, तो ये 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इमेजिनरी थिंग है, ये क्या कर रहा है, दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, दूसरे चार्ज पे क्या लगा रहा है, फोर्स लग रहा है। सो इसलिए, ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, okay, so you can say electric field at a point, मतलब ये पॉइंट पे, at a point due to a charge, इसके वजह से, due to a charge, okay, is the force experienced by a unit positive charge, at that place, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो रिपेल्शन होगा, अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन फोर्स उतना ही लगेगा ना, करेक्ट, ओके। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन कैसे करते हैं कि इस पॉइंट पे कुछ तो है, इसकी वजह से, ठीक है, जैसे सेंटेंस है वैसे ही बता रहा हूँ मैं, ओके। सो ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट समथिंग इज देयर विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द दिस चार्ज, force on the what, discharge, okay. So this is the definition of electric field and you have to write this definition in exam if they ask, okay. So हाँ, तो डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ई इज नथिंग बट द व्हाट, फोर्स डिवाइडेड बाय व्हाट, अ यूनिट चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाय व्हाट, टेस्ट चार्ज, ठीक है, ओके। सो एफ डिवाइडेड बाय क्यू, how much force is applied here, exerted here, and divided by what, q naught, okay. So now tell me what is the unit of electric field, okay, can you tell me the unit of electric field, okay. तो इसका यूनिट क्या होगा, ये जैसे इक्वेशन है वैसे ही होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा, न्यूटन, ठीक है। चार्ज का क्या होता है, कूलम, तो इसका जो यूनिट है तो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ये भी 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं, okay, what is the unit of SI unit of electric field, Newton per coulomb, because Newton is force and charge is coulomb, okay. इसका और एक यूनिट है, और एक यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, तो ये भी याद रखो, वोल्ट पर मीटर, ओके। ये बाद में आपको बताऊंगा कि ये यूनिट कैसे आया, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको पूछा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज न्यूटन पर कूलम। सो डेफिनेशन और ये यूनिट याद रखो, ठीक है। ये सिंपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, इसमें से कुछ नहीं लिखना है, समझ के लो बस, ठीक है। डिफाइन बोला तो डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ दे आस्क यू हैव टू राइट डाउन दिस डेफिनेशन एंड देन इक्वेशन इज दिस, ओके। हाँ, लेकिन ये परफेक्ट इक्वेशन नहीं है, और एक इक्वेशन आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड देन दिस इज व्हाट द यूनिट, न्यूटन पर कूलम, ओके। एंड दूसरा एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, ओके, सो यू कैन हैव, ओके, सो डायमेंशन ऑफ
डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू व्हाट, F डिवाइडेड बाय चार्ज, ओके। तो F क्या होता है, न्यूटन, और डिवाइडेड बाय व्हाट, कूलम, ठीक है। हाँ, तो न्यूटन क्या होता है, फोर्स, ओके। सो फोर्स इज गिवन बाय mL/t-2, ओके। और ये जो होता है, ठीक है, एम्पियर टाइम होता है, एम्पियर और टाइम होता है, करेक्ट, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ अ डायमेंशन, ये m यहीं पे रह गया, L/t-3a। सो दिस इज व्हाट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, ओके। क्योंकि कूलम का क्या होता है, एम्पियर और टाइम होता है, एम्पियर टाइम। सो ये टाइम ऊपर गया, एम्पियर, सॉरी पर एम्पियर, यहाँ पर एम्पियर आएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द डायमेंशन। सो फॉर CT फॉर नीट, रिमेंबर दिस, समझ में आ गया, ओके। सो दिस इज व्हाट द थिंग्स, ओके। नाउ अब हम देखेंगे कि अराउंड द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, ठीक है। सो अराउंड सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है वो कुछ अलग है, ठीक है। सो आई विल कंसिडर फर्स्ट वन अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, okay, so this is what a single isolated means what, separated from other fields, okay। तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड होता है, कैसे होता है, रेडियली आउटवर्ड ऐसे। और सिर्फ इतना ही नहीं होता है, हर जगह से आउटवर्ड होता है ऐसे। बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलते हैं, ये इमेजिनरी फोर्स ऑफ लाइन्स होते हैं, ये दिखते नहीं लेकिन हमें इसे ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है, ओके। सो ये कैसे होता है, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि ये चार्ज बॉडी से ऐसे बाहर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ऐसे बाहर जा रहे हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट द अराउंड द सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इज व्हाट, अराउंड सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज, अराउंड सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज जो होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, एक कौन सा भी चार्ज है, ठीक है। तो इसको हम प्लस क्यू मान लेंगे, तो ये माइनस क्यू होगा, ठीक है। हाँ, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है, जैसे ऊपर है वैसे ही रहेगा। तो ये डायग्राम से भी पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। हाँ, इसका डायरेक्शन कैसे है, रेडियली आउटवर्ड है, इसका डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा ऐसे इनवर्ड की तरफ पॉइंट करते हैं चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया रेडियली इनवर्ड, रेडियली क्या होता है, इनवर्ड होता है, ठीक है, ओके। सो दिस इज द थिंग्स, ओके। जैसे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाते हैं, नॉर्थ टू साउथ पोल, वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव बॉडी में से कैसे ऐसे बाहर की तरफ निकलते हैं और नेगेटिव बॉडी में कैसे ऐसे अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है, मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग्स, ओके। तो ये दोनों डायग्राम भी याद रखो, दे विल आस्क मे बी 2 मार्क्स, ठीक है। सो ड्रॉ द डायग्राम अराउंड द व्हाट, सिंगल पॉजिटिव चार्ज एंड सिंगल नेगेटिव चार्ज, सिंगल व्हाट, नेगेटिव चार्ज, ओके। सो नाउ we will see expression for the what, electric field. So derive the expression for electric field due to single isolated point charge, single isolated at point charge at a distance r, ठीक है। so this is what the derivation, I think sometimes they will ask for 3 marks, okay। हाँ, तो इसका कंसेप्ट क्या है
कि ये मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या निकालना है कि इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। तो हमें पता करना है कि ये जो चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इतने डिस्टेंस पे, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसकी वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कितना है, ठीक है। तो हर बार आप ये वाला इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, E इज इक्वल टू वॉट, एफ डिवाइड बाय क्यू, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि एक इक्वेशन चाहिए जो सिर्फ ये चार्ज की वैल्यू पता हो और वो डिस्टेंस आर, क्योंकि यहाँ पे आर वगैरह कुछ नहीं है, कितने डिस्टेंस पे, ठीक है, तो वो हमें चाहिए, ठीक है। सो कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें इक्वेशन निकालना है, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद व्हाट, लेट ए चार्ज, ठीक है। तो आप चाहिए तो ऐसे जैसे है वैसे लिख रहा हूँ ना, आप भी ऐसे ही नोट्स बना सकते हो, ठीक है। मैं नोट्स दूंगा लेकिन उसका वेट मत करो, क्योंकि आप अगर लिखोगे तो वो अच्छा बेहतर होगा, ठीक है। नोट्स तो आपके मिल ही जाएंगे, ठीक है। सो लेट अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, प्लेस्ड एट ओरिजिन मतलब ये सोर्स है, ओके, ओरिजिन, ओके। सो लेट अ पॉइंट P is located at distance r, okay, from source charge, from the what, source charge। अच्छा, source charge क्या है यहाँ पे, Q है, okay। So I will draw the diagram। So this is what a source charge, उसकी वैल्यू कितनी है Q, और ये सेंटर पे रखा है मतलब ओरिजिन, ओके। At a distance of r, from this charge, okay, so there is a point P, at a distance of r। So this is the diagram, okay, so this is the diagram, okay। Now you have to place a test charge Q naught here, test charge, ठीक है, okay। So I will write down here, bring test charge Q naught at point P, then Q exerts a force, ठीक है, मतलब ये Q इस पर फोर्स लगाएगा। हाँ, वो फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू वॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, लेकिन Q1 क्या है Q और Q2 क्या है Q नॉट, डिवाइडेड बाय वॉट, आर स्क्वायर, करेक्ट, ओके। सो मेक दिस इक्वेशन नंबर 1, okay। So from definition of electric field, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, E इज इक्वल टू वॉट, F डिवाइडेड बाय Q नॉट, ओके। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस यूनिट टेस्ट चार्ज, ओके, बाय दिस चार्ज, सो दैट इज वॉट, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, ओके। सो हमें बताइए कि F क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/Q नॉट। ये 1/Q नॉट मैंने सेपरेट लिया है, F को यहाँ पे प्लेस किया है, ठीक है। Q नॉट कैंसल आउट, ओके, Q नॉट कैंसल आउट। सो व्हाट इज लेफ्ट फाइनली, सो E इज इक्वल टू वॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, मतलब किसी भी चार्ज की वजह से एक डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, सो यू कैन यूज दिस इक्वेशन, ओके। सो दिस इज व्हाट द 3 मार्क डेरिवेशन, ओके। समटाइम्स दे आस्क टू मेक इट परफेक्ट, ओके। किसी भी चार्ज की वजह से यहाँ पे एक डिस्टेंस पे फोर्स, एक डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये आप निकाल सकते हो, ओके। एंड देन ओके, मेक अ नोट, ओके। इसका और एक इक्वेशन क्या होगा, अगर E इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय Q है तो F इज इक्वल टू वॉट, Q इंटू ई होगा, ठीक है। F इज इक्वल टू वॉट, Q इंटू ई, ये भी इक्वेशन आप याद रखो, ठीक है। और यहाँ पे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू वॉट, mg भी यूज़ करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये नहीं कि AF इज इक्वल टू mg है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू mg, न्यूटन्स सेकेंड लॉ याद रखो बस, ठीक है। ये यूज़ आएगा आपको बाद में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द थिंग्स, ओके। सो नाउ सपोज एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a distance
you can say 6 centimeter from a charge of 2 into 10 to the power of minus, okay, so from a charge of 2 into 10 to the power of minus 6 कूलम। ओके हाँ, तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन क्या है, ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है कितनी दी है, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 कूलम। ओके, इस चार्ज की वजह से एक पॉइंट है P, वो कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, 6 सेंटीमीटर पे लोकेटेड है। ओके, सो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ये निकालना है, ठीक है। हाँ, तो सिंपल है, बस इक्वेशन यूज़ करो, ये वाला इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे R क्या है, 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 मीटर में लेना है, ठीक है, क्योंकि वो सेंटीमीटर में, ठीक है। हाँ, तो बस वैल्यू रख दो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, ओके, Q कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 होल डिवाइड बाय R स्क्वायर इज 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 दी होल स्क्वायर, करेक्ट। ओके, सो 9 इंटू 2 you will get 18 into 10 to the power of minus 6 plus 9 you will get plus 3, and this is you will get 36 multiplied by 10 to the power of minus 4। okay, therefore electric field is equal to what, 18 2s are 36, so 1/2 मतलब कितना हो गया, 0.5 into 10 to the power of plus 3 into 10 to the power of plus 4, because this will move up, it become plus 4, so it becomes 0.5 into 10 to the power of plus 7, correct। okay, so just check it, plus 9 minus 6 you will get plus 3, then 9 into 2 18, 18 2s are 36, मतलब हाफ हो गया, हाफ मतलब 0.5 होता है, और 10 to the power of 3 as it is, and this 10 to the power of minus 4 will move up, it become plus 4, so total if I multiply this, okay, so I will take out the 2 0 here, if you, okay, so 0.5 multiplied by 2 0, that means 100, you will get 50 into 10 to the power of 5 Newton per coulomb। okay, so this is what answer। okay, so बस ये इक्वेशन याद रखो, किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे अगर निकालना है तो आपको ये इक्वेशन यूज़ करना है। जैसे ये सिंपल एग्जांपल लिखा है मैंने, ठीक है, तो ये एग्जांपल है, ठीक है, और भी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। दैट मीन्स व्हाट, डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, क्या होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड होता है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉइंट करेगा बाहर की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो बाहर की तरफ करेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉइंट P है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में इनवर्ड होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड होता है, हमेशा क्या होता है, इनवर्ड होता है, और ये आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो इसके अराउंड कहीं भी पॉइंट ले लो आप यहाँ पे, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा। इसके अराउंड आप कहीं भी पॉइंट ले लो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इनवर्ड ही होगा चार्ज की तरफ, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अब ये नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो धीरे धीरे से समझाऊंगा, एक एक कंसेप्ट लेके, नहीं तो बहुत सारा समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हम कल इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नोट्स वगैरह खुद बनाओ, जैसे मैंने लिख रहा हूँ ना आप चाहे तो ऐसे ही लिखो, डजेंट मैटर, यही नोट्स है आपके, ओके। और जो भी होमवर्क वगैरह दे रहा हूँ तो थोड़ा सा वो अच्छी तरह से करो, ठीक है, ओके। सो ना दिस इज व्हाट ऑल अबाउट टुडे, okay, so see you in the tomorrow, bye, thank you। I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in the Benz.